Good morning, students. Let us continue the story. We left on the point when Sadao had operated on the American prisoner of war, and when he had operated, he found that the American soldier had fainted. He was completely unconscious. He thought that he should check whether he had died because of operation or not. But when he checked that his pulse was dim, or we can say faint, and his heart was also beating, so he became confirmed that he was alive. But it was not enough. His pulse was not pulsating at the actual speed, so he had to do something. Let us start from that point. This is the point we left the chapter here. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble. Feeble means weak, but enough if he wanted the man to live, to give hope. We have to start from here. But certainly, I do not want this man to live, he thought. Sadao does not want that person to be alive. Still, he operated on him, and it was because of him being a doctor. He had to do that. It was his duty to save the life of that person, but he didn't want him to be alive. No more anesthetic, he told Hannah. He turned as swiftly as though he had never paused. Paused means stopped. And from his medicines, he chose a small vial. Vial means a small container of glass, and from it filled a hypodermic. Hypodermic is an injection, and thrust it into the patient's left arm. Why did he do this? Because the pulse of the prisoner of war was very faint. So he wanted to give him energy, he wanted to give him strength. Then, putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice. Flutter means fadfadana, ladkhadana, and then grew stronger. So, the American soldier got this injection and his pulse started growing stronger. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. This man will live in spite of all. What has he said? Unconsciously. इसका मतलब ये है कि ये आदमी जिएगा, कुछ भी हो जाए ये जिएगा. Although he wanted to say it related to his operation, कि भाई अब ये मरेगा नहीं. He would not die because of the wound that was due to the bullet. भाई उसको गोली लगी हुई थी, उस वजह से नहीं मरेगा वो. बट ये सेंटेंस का मीनिंग तो कुछ और ही निकल रहा है. It is indicating that this person is going to live whatever the circumstances are. But Sadao didn't want to say this. Sadao only wanted to say about the condition of his health, that now he was out of danger. He said to Hannah and sighed. Sighed means took a deep breath. The young man woke, so weak, his blue eyes so terrified, when he recognized. जब उसने पहचाना ना, बहुत डरा हुआ था. क्या पहचाना उसने? He perceived where he was, कि वो कहाँ था. When he recognized where he was means he was in Japan. That Hana felt compelled. Hana felt compelled means majboor to apologize, to say sorry. What does this mean? जब
अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को ये पता लगा ना कि वो जापान में है, किसी जापानीज़ के घर पे है, तो उसको बड़ा एकदम से धक्का लगा, एकदम से डर गया वो। और जैसे ही उसको उसके फेस पर ये एक्सप्रेशन हाना ने देखे, हाना को सॉरी फील करना पड़ा, थोड़ा सा अपोलोजाइज करना पड़ा कि भाई वी आर सॉरी दैट यू आर हेयर, मीन्स यू आर इन डेंजर, स्टिल यू आर इन डेंजर। शी herself served him for because none of the servants would enter the room. Servants were still there, but they were not cooperating. They were not obeying their masters. They clearly denied that they would not go. They didn't want to enter the room of that American. So सदा हाना को खुद ही उसे सर्व करना पड़ा। When she came in the first time, she saw him summon his small strength. Summon means gather. His small strength, small means थोड़ी सी जान थी बेचारे के अंदर, कितना कमज़ोर हो गया था, ऑपरेशन हुआ था, एक तो उसका उससे पहले गोली लगी हुई थी, कितनी ब्लीडिंग हो चुकी थी। तो जो भी थोड़ी सी उसके पास ताकत थी वो उसने इकट्ठी की, किस लिए? टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। प्रिपेयर होने के लिए, भाई कुछ खतरनाक बात घटित होने वाली है उसके साथ, इसलिए उसने अपने आप को तैयार किया उस चीज़ के लिए कि भाई मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है अभी। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, शी प्रेड, शी रिक्वेस्टेड कि भाई डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश? ही गास्प्ड, गास्प मीन्स ही स्टार्टेड ब्रीदिंग हैवीली, जोर जोर से सांस लेना शुरू किया उसने। एंड वाई वॉज ही गास्पिंग? बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट ही मेड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। उसने जो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए जो एफर्ट्स किए थे उसकी वजह से एनर्जी नहीं थी, जान नहीं थी बेचारे के अंदर, तो सांस तो अपने आप ही फूल जाएगी। और उसने क्या पूछा? तुम इंग्लिश कैसे बोलती हो? आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो ही नेल्ट, सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलेन स्पून। पोर्सिलेन मीन्स जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो पोर्सिलेन होते हैं, वो उस स्पून से उसने उसको खिलाया। ही एट अनविलिंगली, अनविलिंगली मीन्स विदाउट एनी विश, बट स्टिल ही एट। सो वो खाना नहीं चाहता था लेकिन उसने खाया खाना। एंड हाना फेड हिम जेंटली। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, she said, not liking him and yet moved to comfort him. Look at this perspective of this lady. वो चाहती नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करती है, वो उसको अपना दुश्मन ही मानती है। स्टिल शी इज़ फीडिंग हिम बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। इंसानियत के नाते उसको कंफर्ट फील कराने के लिए वो ऐसा कह रही है कि तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। सो यू कैन ascertain from here that how kind Hannah is, how kind her husband is. जनरली ऐसा होता है कि हस्बैंड काइंड होता है और वो किसी इस तरह का काम करे तो वाइफ वाइफ हो सकता है उस चीज़ को अपोज करे कि दैट यू आर फूल, वाई व्हाट आर यू डूइंग, यू डोंट थिंक अबाउट अस, यू जस्ट टेक केयर ऑफ अदर पीपल, यू जस्ट थिंक अबाउट सोसाइटी। बट हाना बिल्कुल कोऑपरेट करती है अपने हस्बैंड को, बिल्कुल हर एक तरह से अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है, जो भी डिसीजन वो लेता है उसकी पूरी रिस्पेक्ट करती है, उसको पूरा सपोर्ट करती है। ही डिड नॉट आंसर। टू व्हाट डिड ही नॉट आंसर? ही डिडंट आंसर द फैक्ट, द स्टेटमेंट ऑफ हाना। हाना ने कहा था कि तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। एंड यू नो वाई ही डिड नॉट आंसर? ही न्यू दैट he would be handed over to the police, that's why. And then he would not be able to use his strength. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. ब्लड की कमी थी उसमें, और जब वो बैठा था तो डेफिनेटली उसकी बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ी। जब एक्टिविटी करते हैं, हम कोई काम करते हैं, एट दैट टाइम वी नीड ब्लड, बिकॉज ब्लड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी,
ब्लड के थ्रू ही तो सारी एनर्जी जो है वो सप्लाई होती है। तो वहाँ पर जिस जिस ऑर्गन से हम काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गन से एनर्जी यूज़ हो रही है, दिस दैट ऑर्गन नीड्स ब्लड। तो इसलिए फेस का सारा ब्लड नीचे चला गया। और एक और रीज़न ये भी है कि हमारा ब्लड जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, और जब एनर्जी कम होती है तो वो फ्लो कम कर पाता है। दैट्स वाई हिज फेस वॉज ब्लडलेस। लाई डाउन, सडाओ क्राइड। डू यू वॉन्ट टू डाई? मरना चाहते हो क्या? वाई डिड यू सिट? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, although he forced, but he forced him gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. Scolded, he chided means धमकाया उसने उसको, डांटते हुए कहा कि भाई अगर ऐसा करोगे तुम अपने आप को मार दोगे. You should not sit. What are you going to do with me? This was what अमेरिकन वॉन्टेड टू आस्क. यही तो पूछना चाहता था कि भाई मेरा करोगे क्या तुम. द बॉय मटर्ड. ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17. और अब तो वो केवल 17 साल का एक लड़का लग रहा था, बिल्कुल छोटा सा. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? क्या तुम मुझे सौंप दोगे? किसको? योर अथॉरिटीज. फॉर अ मोमेंट सडाओ डिड नॉट आंसर. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought, of course, to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. सडाओ जब उसको ये बात बोल रहा था कि भाई मुझे तुम्हें पुलिस को ही सौंप देना चाहिए, दैट इज़ माई ड्यूटी, तो उसने कुछ बोलना चाहा होगा. और जैसे ही उसने बोलना चाहा सडाओ को पता लग गया, और सडाओ ने तुरंत अपना हाथ उठा करके उसको रोक दिया कि कुछ मत बोलना. यू शुड नॉट टेल मी इवन योर नेम. मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं ना पूछूं. वट डज दिस मीन? वाई डिड सडाओ स्टॉप हिम टू से एनीथिंग? Sadao knew that if they talked with each other, there would be a bond of emotions. They would be attached. There would be a feeling of fellow being. And then it would be very difficult for him to hand him over. बातचीत स्टार्ट करते हैं जब किसी इंसान के साथ हम, तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दुख को जब जान लेते हैं, उसकी कंडीशन को जान लेते हैं, तो एक अपनापन आ जाता है. सडाओ डिड नॉट वांट दैट टू हैपन. दैट्स वाई ही स्टॉप्ड हिम इन बिटवीन. मुझे अपना नाम भी मत बताना. एंड इट वॉज बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गेट अटैच्ड विद दैट प्रिजनर ऑफ वॉर, so that he could do his duty. He wanted to do everything mentally. And we know when a person starts thinking emotionally, it becomes very difficult for that person to take decisions. They looked at each other for a moment, and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. His face had bitter expressions. He was a little bit sulky. नाराज हो गया था वो. Outside the door, Hana was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. Hana was in trouble. That's why she was standing outside the room, and she wanted to say something to Sadao, and Sadao at once came to know by watching her face. Sadao, you may tell me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. Servants have given a warning कि भाई आप इस आदमी को यहाँ भी रखोगे तो हम यहाँ नहीं रह सकते. We just don't want to stay here. She said. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. और उन्होंने रीज़न भी दिया सर्वेंट्स ने. सर्वेंट्स कह रहे हैं कि भाई
सडाओ और हाना इतने दिन तक अमेरिका में रह के आ गए हैं कि उन वो अपने देश के बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। वो अमेरिका को अपनी कंट्री मानने लगे हैं। इट वॉज अ ब्लेम, इट वॉज एन एलिगेशन, आरोप था उनके ऊपर, वो बिल्कुल नौकरों ने लगा दिया। और यहाँ पर बात एक अलग ही हो रही है। भाई सर्वेंट्स जो बात बोल रहे हैं उस बात को अगर वो बाहर जा कर के बोल दे, देन दे वुड बी इन ट्रबल, it will create problem for them, and it will be very difficult for them to prove that they had taken that prisoner of war at to their home just to operate him, and they just wanted to hand him over. कोई भी नहीं मानता ये बात। that's why it was problematic for them. they think we live like Americans. सर्वेंट्स को लगता है कि हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं। it is not true, Sadao said harshly. ये सच नहीं है। हार्शली मीन्स स्ट्रांगली। अमेरिकन्स आर आर एनिमीज, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं, सच बात तो ये है। और मुझे ट्रेन किया गया है, मुझे सिखाया गया है कि अगर किसी मरते हुए इंसान को मैं बचा सकता हूँ तो मुझे बचाना होता है, चाहे वो कोई दुश्मन भी क्यों ना हो। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्जियसली इंटेंशन। सर्वेंट नहीं समझ सकते ये बात। नो, ही एग्रीड। सडाओ एग्री कर गया कि हाँ वो नहीं समझ सकते, उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना ऊंचा नहीं है। अगर होता तो दे वुड नॉट बी सर्वेंट्स। लेकिन ये बात मैं बोलना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई अगर सर्वेंट है तो उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल ऊंचा नहीं होता, होता है। लेकिन किसी का अगर होता है ना ऊंचा लेवल, तो ज़्यादा दिन सर्वेंट नहीं रहता, वो प्रोग्रेस कर जाता है। थिंकिंग ही तो है जो इंसान को ऊपर उठाती है। वेदर यू आर लिटरेट और इलिटरेट, वो मैटर नहीं करता, आपकी सोच मैटर करती है। अगर सर्वेंट का लेवल इतना अच्छा है सोचने का, देन ही वुड नॉट बी अ सर्वेंट फॉर लॉन्ग। वो चेंज कर लेगा अपनी सिचुएशंस को, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा तो कोई भी काम करे वो उस काम के अंदर क्वालिटी होगी फिर, और वो क्वालिटी अपने अपने आप ही उसे प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाएगी। तो सडाओ ने मान लिया कि वो सर्वेंट्स जो थे वो इतना ज़्यादा लेवल नहीं था उनका समझने का कि वो मान जाए इस बात को कि दैट दे जस्ट वांटेड टू डू इट फॉर द ह्यूमैनिटी एंड दे जस्ट वांटेड टू हैंड हिम ओवर। नीदर सीम्ड एबल टू से एनी मोर। नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी और कुछ कह नहीं पाया। दे डिडंट हैव एनीथिंग टू से। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग डाउन हाउस होल्ड जो था ना, घर जो था ना, वो घिसटता रहा। बिकॉज देर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन ऑनर्स एंड सर्वेंट्स, बिटवीन द मास्टर्स एंड द सर्वेंट्स एक डिस्प्यूट था, और उस डिस्प्यूट के बीच में घर जैसे तैसे करके चल रहा था। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल। वाओ। जनरली इट इज फाउंड दैट मास्टर्स आर वॉचफुल ऑन सर्वेंट्स, बट हेयर सर्वेंट्स वर वॉचफुल। सर्वेंट्स बिल्कुल तिरछी आंखों से उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे घर के अंदर। मालिक को भी पता है कि दैट दे जस्ट वांटेड टू एग्जामिन एवरीथिंग, बट कह नहीं सकते कुछ। क्या कह सकते हैं? दे वर डूइंग इट बिकॉज दे वर थिंकिंग देम ट्रेटर्स। दे थॉट दैट दे वर Sadao and Hana liked Americans and they didn't like their own country. They had clearly said this, so they were watchful, they were observing everything. Their courtesy was as careful as ever. Courtesy means their kindness, their respect was जैसे पहले वो रिस्पेक्ट करते थे ऐसे ही करते थे। बट their eyes were called upon the pair to whom they were hired. बट अब नफरत से भरी हुई थी उनकी आंखें अपने मालिकों के लिए। कॉर्टेसी तो पूरी थी। इट इज़ क्लियर वट आर मास्टर ought to do, the old gardener said one morning. Now the gardener said कि क्लियर रही बात हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. Moss is a vegetation, काई बोलते हैं जिसको हम। That is also लोग इसके भी उसको भी उगाते हैं अपने गार्डन्स में। For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface.
इतने सालों तक उसने उनकी सेवा की थी, उसके फादर की भी सेवा की थी, उसके फादर के लिए एक मॉस का गार्डन भी बनाया था, मैट को डेली साफ़ करता था ताकि कोई एक एक नीडल, एक कोई कांटा उस कारपेट में ना चुभ जाए और उसको ख़राब कर दे। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वट ही ought टू डू। और वो ये कहता है कि भाई मेरे मालिक, पुराने मालिक के बेटे को अच्छे से पता है कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। एक फूल तोड़ते हुए उसने, एक कली को तोड़ते हुए उसने ये बात बोली। व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। जब ये आदमी मौत के इतने नज़दीक था तो उसको खून बह के मरने ही क्यों नहीं दिया, क्यों बचाया उसको। वी नो वाई ही सेव्ड हिम। क्या सर्वेंट समझ सकता है इस बात को, क्यों बचाया, हम जानते हैं। बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव द पर्सन। अ डॉक्टर कुड नॉट सी अ पर्सन डाइंग। अगर ऐसा करता है डॉक्टर तो वो एक क्राइम है, दैट इज़ अ क्राइम। ऑल्दो ये कंडीशन ऐसी है कि वो देश देश की बात है कि वो क्या मानते हैं इस चीज़ को, उस वक्त क्या बात थी वो अलग है, लेकिन आज के टाइम पे अगर एनी भी है तो उसकी भी जान बचाना एक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है। इट रिमाइंड्स मी अ स्टोरी। एक बार एक किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये दिल्ली की बात है, मैंने बहुत साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। और उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसके साथ जो भी बंदा था उसको लेके गया एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर थे हॉस्पिटल के, वो ट्रीटमेंट के मूड में नहीं थे। बट द मैन वॉज ब्लीडिंग। तो उसके साथ जो लोग थे वो किसी और हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर जाने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कोशिश की बचाने की, लेकिन वो आदमी मर गया। इट वॉज सो सैड कि उस आदमी को ट्रीटमेंट नहीं मिला एक्सीडेंट के बाद। और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप थोड़ी देर पहले ले आते या इस बंदे को थोड़ी देर पहले ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये बच जाता। तो जो साथ में लोग थे उनको एहसास हुआ कि जिस हॉस्पिटल में हम पहले गए थे अगर वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो बच जाता। उनके लिए तो बहुत कीमती थी उसकी जान। उनको गुस्सा आया और उन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन कर दी। एंड द डॉक्टर वॉज sentenced to 7 years of jail and his license was cancelled when it was proved कि भाई उसके पास गए थे वो। द जज sentenced him for 7 years। और जज ने कहा कि आपकी ड्यूटी है, इफ़ यू हैव opted for this profession it is your duty to be ready 24 hours। तो आपको करना है ये काम। सो सडाओ वॉज डूइंग इट नॉट बिकॉज ही वॉज he was ordered by someone, he did not want to get away from this kind of jurisdiction। वो उसके मन की बात थी, वो मानता था उस चीज़ को। और उसको पता था कि देख डॉक्टर्स आर ट्रेंड, डॉक्टर्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल। बट ये बात गार्डनर पूछ रहा है, क्यों बचाया उसको, मरने क्यों नहीं दिया। सो आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, क्या डॉक्टर ने ठीक किया या डॉक्टर ने गलत किया। ही शुड आंसर। एंड आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस लेक्चर हेयर एंड वी विल कंटिन्यू tomorrow. Till then, my dear students, take care. Bye.